Hi, good evening, Bachalog. So hardly few hours are left, so I'll not take much time of yours. It's just a 10 minutes session just to give you the last minute tips which you should consider tomorrow or in the next 10 to 12 hours. So the difference between why we have candidates who are able to go to the interview or already clear the exams are not able to clear the prelims exam, which is regarded as an objective type of exam in which the answers are in front of you. उस चार में से ही तो एक आंसर होता है, but still they are not able to clear this exam. So I suggest you that you should do few things and you should skip few things. So to clear this particular exam, there are two things which are relevant. The first one is the knowledge which you have accumulated throughout your preparation. The various monthly booklets जो आपने पढ़ा है, coaching के notes आपने पढ़े हैं, starting books आपने पढ़ी हैं, लक्ष्मीकांत, ये वो, NCERT, etc. and all, last minute खुद के notes, Hindu and all. So this is one thing which is relevant. But still there are candidates who are able to clear prelims in maybe 2017 but not able to clear the exam in 2018 or 2019. Knowledge remains the same. The difference is the second most important point, that is the alertness during the exam. There are few things which you must do during the exam and there are few things which you should never do in this particular exam. So let's first focus upon why the alertness is required. What this mental alertness which is required. It's a kind of एक physical sports होता है, उसमें आपकी physical alertness matter करती है. आप बहुत सारा practice करते हो 400 meters, 800 meters, but in case your alertness level is less during the final 400 meter का lap or 800 meter का lap, so total मेहनत waste हो जाता है. So in this particular competitive exams, the mental alertness matters. So this mental alertness, what is the significance of this mental alertness is, there are a lot of things which you even with relatively less knowledge, you can clear this particular exam. The first significance of the alertness is you will be able to recall better. If you have studied limited sources, but still if you have revised these sources and you have done all these things, this we are going to discuss, these 5-6 things which you have to consider, you will be able to recall in a much better way. Marks कितने लाने हैं? 110, 115, 120, बस hardly 50 to 60% marks लेके आने हैं अपने को. The second benefit of the alertness is you will be able to analyze the things better. In case of the prelims exam, there are few questions जो directly आ जाते हैं. There are few questions which are interrelated. Maybe एक में पंचायती राज ऐड किया होगा और second में local self government ऐड किया होगा. Maybe फर्स्ट वाले में वुमेन से रिलेटेड होगा और सेकंड वाले में चाइल्ड से रिलेटेड कुछ होगा. एक स्कीम होगा और सेकंड स्कीम मर्ज किया होगा. So the second benefit of the alertness is it analyzes, you will be able to analyze the facts and figures in a much better and a faster way. And the last one we have is, there are few mistakes which you cannot afford to commit in this exam. For example, in the last year there were questions like related to the normal economics question. There were very basic questions. So such basic 8 to 10 questions होते हैं ये. These basic 8 to 10 questions you cannot afford कि आप गलत करके आ जाओ उसको. जैसे ही आपने वो basic questions गलत कर दिए, and ये basic questions is not about the knowledge, this is about the mental alertness, the presence of mind कितना चल रहा है आपका, वो बताता है. Next is the basic 5-6 things which you must do in your exam is, first one is the rest thoroughly a day before the exam. आज जितना पढ़ लिया है उतना पढ़ लिया है. Last minute revision में बहुत सारा फायदा नहीं होता है. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करोगे, सो अगर आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप वर्सेस 1 चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, आई ऑलवेज सजेस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप. देखो प्रेजेंटली अगर 7 to 8 आवर्स आपने नहीं सोया है तो जितने भी मेहनत थ्रू आउट द इयर्स, द हार्ड वर्क विच यू हैव पुट इन, सब वेस्ट हो जाएगा. आपकी रिकॉलेबिलिटी नहीं आएगी. जस्ट टारगेट मीटिंग एक्सरसाइज हो जाएगा कि मैंने इतने चैप्टर्स रिवाइज किए हैं, लेकिन अगर उन चैप्टर्स के हम कन्वर्ट नहीं हुआ मार्क्स में तो सारी मेहनत वेस्ट है भाई. सो फर्स्ट थिंग इज 7 to 8 आवर्स की स्लीप, सोना ही सोना है आपको. एंड टेक दिस एग्जाम एज एन एग्जाम ओनली यार. अगर एग्जाम से थोड़ा ऊपर लेवल पे सोचोगे तो एंजाइटी लेवल, रेस्टलेसनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. और सेम प्रॉब्लम आप किसी जब स्पोर्ट्स में जाते हो, सो सेम प्रॉब्लम ही है. वो जो हार्डली 2-3 मिनट्स का लैप होता है या 2-3 मिनट्स का गेम होता है, वही सारा गेम है. उससे पहले का जितना मेहनत है विच इज रेलेवेंट, बट इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन दोज 2 to 3 minutes, इट्स ऑल वेस्ट. इन योर केस इट्स हार्डली 4 hours, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर. जितना भी मेहनत किया है दैट यू हैव डन ओनली फॉर दिस D-Day, दैट इज टुमारो, दैट इज फॉर दीज 4 hours ओनली. सो टेक प्रॉपर रेस्ट. अच्छे से रेस्ट करना है आपको.
डू नॉट, रात को बहुत लेट तक मत सोना, या ऐसा मत करना कि सुबह 4 o'clock उठ रहे हो, 3 o'clock उठ रहे हो, एटसेट्रा एंड ऑल. द सेकंड वन इज बी प्रिपेयर्ड अ डे इन द एडवांस. जो आपको जितना भी स्टेशनरी है, ब्लैक पेन लेके जाना है, एडमिट कार्ड के 2-3 कॉपीज का प्रिंट आउट निकालना है, वो सब आज ही निकाल के रख लेना अपने पास. कल वो फाइनल एक लिस्ट में एक चेयर पे रख लेना वो सब कुछ, ठीक है. The third we have is have proper breakfast, fuel for the body and brain we have. देखो, अगर शुगर लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. रिटेंशन उस पर भी बहुत मैटर करता है. सो आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, बहुत सारा मत कर लेना वरना नींद आएगी आपको. सेम अप्लाइज इन द ब्रेक बिटवीन द फर्स्ट पेपर एंड द सेकंड पेपर. सो अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाएंगे. थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है या कोई चॉकलेट हुआ वो एक्स्ट्रा लेके जाना, अपने साथ कैरी करना आप. नेक्स्ट इज द रीच द सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर एट एनी कॉस्ट. कोविड के टाइम पे वैसे ही बहुत इशू चल रहा है. कोशिश करना कि प्राइवेट व्हीकल से जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. एक डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं. सो डोंट कंसीडर योरसेल्फ कि यार मेरे पास तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है या कंफर्ट में नहीं जा पा रहे हो. बिना कंफर्ट के बच्चे अच्छे खासे पेपर पास करते हैं. देखो, आप जो सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हो ना, वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास होने के बाद पढ़ते हो. जो हम सक्सेस स्टोरीज बनाते हैं बच्चों के साथ मिलके, वो उनके फेलियर्स की सक्सेस स्टोरी है, उनके स्ट्रगल की सक्सेस स्टोरी है और उनके पास होने के बाद की सक्सेस स्टोरीज हैं. तो हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं बच्चे को देख रहा हूँ. ट्रस्ट मी, there are candidates who are able to clear this exam in first attempt and there are candidates who are able to clear this exam in the very last 6th attempt. दोनों ही तरह के बच्चे मैंने देखे हैं, मेंटर किए हैं. सबकी लाइफ में सेम ही क्वेश्चन होता है वन डे बिफोर द एग्जाम कि मेरा पेपर पास होगा या नहीं होगा. अगर आपको लग रहा है कि आप यूनिक हो तो आप यूनिक नहीं हो. आपको एंजाइटी है, उसको भी एंजाइटी थी. आपको लग रहा है कि आपका पेपर पास नहीं होगा, उसको भी लग रहा था कि उसका पेपर पास नहीं होगा. बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज यूर द फ्रेम ऑफ योर माइंड टुमारो. वो मैटर करेगा बस. अगर आप पीसफुली अपने सर्कमस्टांसेस को रूल कर पाए तो यू आर गोइंग टू विन टुमारो. अगर सर्कमस्टांसेस को रूल नहीं कर पाए, so competitive exams में there are lot of competition, lot of enemies, and I will say there are lot of enemies of yours in this exam. Don't become your own enemy. बाकी तो आपको ड्रैग डाउन कर ही रहा है ना, खुद को क्यों ड्रैग डाउन करना है. सो कामनेस, स्ट्रैटेजी, ये सब पे फोकस करेंगे रादर देन जो नहीं पढ़ा वो तो नहीं पढ़ा ना. अब तो एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते उसको, तो जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दो. whatever is in your hand, सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे बस. अब नेक्स्ट इज रीच द सेंटर 30 मिनट्स, ये हो गया. एंड लास्ट वी हैव इज अटेम्प्ट स्मार्टली. उसका एक प्रोसेस है, फेज है. डोंट अटेम्प्ट टू मच, डोंट अटेम्प्ट टू लेस. अगर 60-50 अटेम्प्ट करोगे तो पेपर में बहुत दिक्कत होने वाली है. 95-100 अटेम्प्ट करोगे तो भी बहुत दिक्कत होने वाली है. ये अटेम्प्ट के रिगार्डिंग एक छोटा सा मैं सजेशन देता हूं हमेशा, दैट इन केस फॉलो ए ग्रेडेड अप्रोच. ग्रेडेड अप्रोच मतलब एक बार में पूरा पेपर देखेंगे, जो क्वेश्चंस 100% यू आर श्योर उसको अटेम्प्ट करेंगे. देन सेकंड टाइम में पेपर देखेंगे, द क्वेश्चंस इन विच यू आर 66 और 75% श्योर उसको अटेम्प्ट करेंगे. एंड देन फिर थर्ड राउंड में आएंगे जिसके अंदर यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. थोड़ा गेस वर्क करेंगे, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन श्योर हो, 2 करना है, एटसेट्रा एंड ऑल. सो दिस शुड बी द ग्रेडेड अप्रोच. राउंड 1 में अटेम्प्ट ऑल द इजी क्वेश्चंस इन विच यू आर 100% श्योर. इजी का मतलब है जो आपको आता है वो इजी है. देखो, सेकेंड राउंड में होगा अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच यू आर फेमिलियर विद एंड 75% श्योर, एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर राउंड 1 एंड राउंड 2. अगर वो 80, 85, 90 तक जा रहा है तो राउंड 3 में मत जाना. और अगर आप फर्स्ट और सेकंड राउंड मिला के 60, 65, 70 तक जा रहे हो तो आपको थर्ड राउंड में जाना होगा. देखो, इररिस्पेक्टिव ये मत सोचना कि मुझे राउंड 1 में आई एम एबल टू सॉल्व ओनली 35 क्वेश्चन. अगर आप 35 कर पा रहे हो तो आपका कॉम्पिटिटर भी इतना ही करेगा, बिकॉज आपने जितना पढ़ा है उसने भी उतना ही पढ़ा है यार. Don't underestimate yourself in the exam hall. Next we have is if you are 0% sure about any question तो उसको छोड़ देना. ऐसे फालतू का गैस मत लगाना, नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, स्पेशली इफ यू आर 90+. अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड इज 90+ तो उसको कम कर देंगे. एंड द लास्ट वी हैव इज यू शुड लुक आउट फॉर द फॉर कीवर्ड्स. ओनली आ गया, जो जनरल कीवर्ड्स हैं. बट ये भी ध्यान रखना कि देयर आर फ्यू थिंग्स which includes there are few questions in which there will be only, always, etc. और वो ठीक हो जाते हैं. So for example, if there is a question that the import of services is always less than the export of the services,
सो ये करेक्ट है, पिछले 10 सालों में ऐसा ही हो रहा है. सो एक जेनरिक रूल नहीं है, बट या यूजली जो कीवर्ड्स हैं उसमें एक रेड फ्लैग ऑन कर लेना और उन वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मस्ट डू हैं. देन नेक्स्ट वी हैव इज देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको अवॉइड करना है. सो डोंट टेक सीसेट लाइटली. ऐसा मत सोचना आराम से निकल जाएंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है एटसेट्रा एंड ऑल. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे. ट्राई करना 55 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का. पूरे 2 आवर्स तक आपको सीसेट अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं कि 1.5 आवर्स में बस मेरा तो हो गया अब मैं छोड़ देता हूं. नो, फुल 2 आवर्स तक आपको सीसेट अटेम्प्ट करना है. फुल 2 आवर्स करोगे तो आई एश्योर यू 99% आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा. द सेकंड वी हैव इज डोंट लेट द स्ट्रेस ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस ओवरवेलम यू. ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला इशू बहुत आता है बेटा. अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज डोंट get easy questions wrong. So there are few questions which I told you, 8 to 10 questions आएंगे which we cannot afford कि वो गलत हो जाए. Next is don't overlook the correct and the not correct statements. UPSC काफी बार देखता है which of the following statements is not correct. उसका extra आपको ध्यान रखना है. Then we have don't mark in the wrong circles. Whitener use मत करना, avoid करना. So the best thing is कि don't mark in the wrong circles. अगर इन केस सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपने रोल नंबर गलत फिल कर दिया या सेंटर में कुछ गलत फिल कर दिया और इवैल्यूएटर अगर आपको कहता है कि आप व्हाइटनर यूज कर लो, ट्राई करना कि यूपीएससी के जो इन्विजिलेटर्स आते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का. जो स्कूल की नॉलेज होती है टीचर्स की वो इनफ नहीं होती है. सो कोशिश करना कि नहीं आपको यूपीएससी के इन्वेस्टिगेटर से इन पर्सन बात करनी है कि कैन यू यूज द व्हाइटनर और नॉट. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो एक और ओएमआर दे देंगे बिकॉज एब्सेंटीज काफ़ी सारे रहते हैं. बट इन केस वो नहीं देते हैं तो यूपीएससी इन्वेस्टिगेटर से कंफर्म किए बिना डोंट एग्री टू द words of the school teachers and all. Next we have it don't lose the sight of the time. Regularly आपको टाइम देखना ही देखना है. Most probably watches आपको अलाउ नहीं होंगी बट हर क्लास के अंदर एक टाइम क्लास वॉच लगा होगा वॉल पे. Then we have don't discuss the paper during the break. Avoid करेंगे हम पेपर unless and until you are 100% sure कि CSET comfortably निकाल लोगे. Otherwise we will see this particular analysis की googling of these answers etc and all after 4:30 के बाद देखेंगे. Tomorrow I'm going to meet you again 6 p.m. live to discuss all these questions. So next में आता हूँ. And last we have is don't try anything new on the exam day. This particular day or the final day is not for the experimentation. Whatever you have planned उसको implement करना है हमें कल. We are not going to experiment anything. अगर आपने ये strategy follow नहीं किया तो छोड़ दो. जो आपकी strategy है वही correct हो सकती है. So don't do experiments on tomorrow we have. Why we should not do the experiments? Can you tell me the difference between when you have to walk on a straight line, when you are walking on a common plane? आप अगर normal फर्श पे चलते हो और अगर ये final इस particular wall पे चलते हो, edges पे, difference क्या है? The difference is all about the mindset. So what matters ultimately, the मूल मंत्र क्या होता है? The attitude is the मूल मंत्र we have. So अगर आपका attitude अच्छा है, so you are going to fetch 10 extra marks tomorrow. Because अगर attitude positive रहेगा, so you will take some extra risk. You will be more innovative in the exam. सो नो नेगेटिव थॉट्स. देखो नेगेटिव थॉट से पेपर पास नहीं होना है, तो जो नहीं होना है उस पर क्यों एक्स्ट्रा फोकस करेंगे. सो नो नेगेटिव थॉट शुड बी देयर, नो लो कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, नो स्ट्रेस, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, यू विल क्लियर द एग्जाम 100%, जस्ट गिव इट योर ऑल. देखो ये सब लिखने के लिए मैंने लिख दिया और आपको भी पता है, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स. देखो whatever the circumstances which you are going to face tomorrow, remember one thing, you are much stronger than all these things. वो शायद आपने मूवी देखा होगा, देयर इज अ वेरी फेमस डायलॉग इन विच दे सेड कि तू इससे हार्ड है छोटे. सो द थिंग इज कि यू आर गोइंग टू द टुमारो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम और नॉट. बट एग्जाम इज नॉट इनफ यार. इस साल नहीं होगा तो अगले साल पास कर लेंगे, अगले साल नहीं होगा तो उससे अगले साल पास कर लेंगे. वो एक फेमस डायलॉग आई यूज, दैट इज जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. 20 में होगा, 21 में होगा, 22 में होगा, 23 में होगा. Think when you will be at the age of 35 years and you will be in the services, nobody is going to ask you कि first attempt में हुआ था, second में हुआ था, third में हुआ था and fourth में हुआ था. There are a lot of people, I know she also said in the public domain that All India Rank 11 Nupur, she gave up her attempts after fifth attempt. जब fifth में उन्होंने इंटरव्यू दिया था नहीं हुआ था, लास्ट ईयर she gave सर इसके बाद नहीं देंगे. It took me 1 hour to persuade her to give this particular final attempt. सोचो अगर वो attempt नहीं देते तो final list में नहीं होते वो. Just because she agreed कि why she agreed? Because I told her only one thing.
that whatever the dreams, they are not your dreams, they are shared dreams. You, your family, your friends, your faculties, all your relatives, उन्होंने मिल के ये ड्रीम रखा था. So you just cannot afford to shred this particular dream of all these individuals or all these people around you we have. So कल जाएंगे, कंफर्ट से पेपर लिख के आएंगे, जो होगा उसके बाद में देखेंगे. बट कल तक में तो आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा ना. whatever information that you have accumulated, उसका मैक्सिमम यूज करके आने वाले हैं और मेंटल अलर्टनेस का एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे. देन लास्ट वी हैव see you guys tomorrow at 6 o'clock. कल मिलते हैं आपसे 6 बजे. वैसे तो हम की पहले ही रिलीज कर देंगे, बट यस, वी विल बी लाइव ऑन आवर यूट्यूब चैनल टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस. और सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के कीज आपको कल 6 बजे मिल जाएगा. सो ठीक है बच्चा लोग, कल मिलते हैं आपसे फिर. ओके, टन्स ऑफ गुड लक, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट.